टॉनी मॉरिसन एज अ फेमिनिस्ट राइटर, ठीक है, वो कैसे एज अ फेमिनिस्ट राइटर थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. द वर्क्स ऑफ टॉनी मॉरिसन प्रेजेंट अ conglomeration of different themes. However, the overarching thematic concern throughout her over is however is with the issues of African American female identity in the contemporary world. ठीक है, इस दुनिया में एक अमेरिकन फीमेल आइडेंटिटी क्या है इस contemporary world में, आज के दौर में. Her novels offer complex examination of problem within the American African community, power dynamics between men and women. और उसके जो novels हैं अक्सर वो क्या शो करते हैं, एक complex examinations हैं of problem within the African American community. एक तो African American community के दरमियान जो एक प्रॉब्लम्स हैं उसको शो करते हैं, फिर पावर डायनामिक्स को शो करती है बिटवीन मैन एंड वीमेन को, फिर इशू ऑफ रेसिज्म इन रिलेशनशिप बिटवीन ब्लैक एंड वाइट अमेरिका, ब्लैक एंड वाइट अमेरिका के दरमियान जो इश्यूज हैं उसको वो शो करती है. मॉरिसन प्राइमरी इंटरेस्ट लाइज विद द एक्सपीरियंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन whose quest for individual identity are integrally intertwined with their community and their cultural history. और मॉरिसन की जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो किस में लाई करता है, अफ्रीकन एक्सपीरियंस है उसका किसके बारे में, अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन जिनका क्वेस्ट है, जिनकी कोशिश है फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिटी आर इंटीजरली इंटरवाइंड. उनकी जो कोशिश है कि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को पालें, तो वो इंटीजरली इंटरवाइंड है विद देयर कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी के साथ और उनके कल्चरल हिस्ट्री के साथ. Her fictions are self-consciously concerned with myth, legend, storytelling, and the oral tradition, as well as with memory, history, and historiography. ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसकी जो फिक्शंस हैं, उसके जो नॉवेल्स हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसली कंसर्न्ड है किसके साथ, मिथ के साथ, लेजेंड के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ, ओरल ट्रेडिशन, ठीक है, जो पीछे से ज़बानी एक ट्रेडिशन चली आ रही है, एज वेल एज द मेमोरी. ठीक है, थीम ऑफ मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री और हिस्टीरियोग्राफी, हिस्टीरियोग्राफी कहते हैं किसी पुरानी कहानी को बयान करना, एंड हैव दस बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पोस्ट मॉडर्न मेटा नैरेटिव, और इस वजह से इसको पोस्ट मॉडर्न इनको पोस्ट मॉडर्न मेटा नैरेटिव्स भी कहा जाता है. नैरेटिव्स किसे कहते हैं, स्टोरी टेलर्स को. Before Morrison, we find no female author who had depicted the issues concerning Afro-American community so avidly. इतने अच्छे तरीके से Afro-American community को नहीं उसके issues को elaborate किया गया before Toni Morrison. After Morrison, many writers tried their skill in this arena, and some of authors that came to the limelight under her stewardship were Alice Walker, Gail Jones, Gloria Naylor, and Toni Cade Bambara. Continuing to use Morrison as a guide, African American female authors have emerged as a consistent and critical dimension in literature. In 1994 interview with Time magazine, Morrison understood the significance of her work for female authors. I felt I represented a whole world of women who either were silenced or who had never received the imprimatur of the established literary world. Seeing me up there might encourage them to write one of those books I am desperate to read. Before Morrison, the most successful African American writers were male. For example, the work of acclaimed African American novelist and essayist James Baldwin had tremendous literary impact in 50s and 60s. Racial themes were explored as they had never been before in these books. Nobody knows my name and go tell it on the mountain. ठीक है, रेशियल थीम्स भी एक्सप्लोर्ड हुई थी इसकी किताबों के अंदर, और वो कहता है कि नो बडी नोज माई नेम, कोई मेरा नाम नहीं जानता, गो टेल इट ऑन द माउंटेन, और जाओ माउंटेन, टेल इट ऑन द माउंटेन, माउंटेन पे जाके बताओ कि मेरा नाम क्या है. इवेंचुअली Baldwin felt uncomfortable living as second-class citizen in the United States and became an expatriate who lived and worked from Paris. अब क्या हुआ कि असल में क्या हुआ था कि बॉल्डविन जो है वो
अनकंफर्टेबल फील करता है जब वो एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे रहता है यूनाइटेड स्टेट में, और फिर वो बाद में क्या हो जाता है, एक एक्सपेट्रिएट बन जाता है, वहां से चला जाता है, एग्जाइल हो जाता है, जो कि फिर बाद में कहाँ पे रहता है, वर्क फॉर फ्रॉम पेरिस, और फिर वो लिव्ड एंड वर्क फ्रॉम पेरिस, पेरिस से रहता है और वहीं पे काम करता है। रिचर्ड राइट बॉल्डविन्स predecessor was also an expatriate, beginning with his autobiography Black Boy in 1945. Wright con- uh, Wright continued The Outsiders, Uncle Tom's Children, and his most important work, Native Son. Ralph Ellison wrote only one book, yet Ellison's Invisible Man won a National Book Award in 1952, and this allows him to join the ranks of male authors successful at, at depicting the enfranchisement of the African Americans in the United States. Morrison is recognized as the most distinguished African American novelist since I Write. Alson and Baldwin. In her work as an author, Morrison wanted to continue to broaden the perspective of American literature by telling the stories she felt were never told. Stories about African American girls and women and the racial and social pressures they faced. ठीक है, वो इन सारों के बारे में ये कहानी सुनाना चाहती थी, अबाउट ऐसी कहानियां जो कभी सुनाई नहीं गई, अबाउट द गर्ल्स एंड वीमेन, और फिर रेशियल और सोशल प्रेशर जो कि वो लोग फेस करते हैं. शी वांटेड टू राइट अबाउट पीपल विद द सेंसिबिलिटी ऑफ कल्चर, और वो चाहती थी कि वो उन लोगों के बारे में लिखे विद द सेंसिबिलिटी ऑफ द कल्चर, जिनके अंदर एक सेंसिबिलिटी थी, ऑफ कल्चर थी, शी ग्रू अप उस सेंसिबिलिटी ऑफ द कल्चर के साथ वो लिखना चाहती थी, जिसमें वो ग्रू हुई थी, उस कल्चर को वो रिप्रेजेंट करना चाहती थी जिसमें वो ग्रू अप हुई थी. मॉरिसन वांटेड हर वर्क टू फोकस ऑन द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ देयर लाइफ, और मॉरिसन क्या चाहती थी कि वो फोकस करे ऑन जॉयज एंड सॉरोज ऑफ देयर लाइफ. शी रोट हर फर्स्ट नॉवल व्हेन शी वाज इन हर 30s. The Bluest Eye, published in 1970, is about a black girl who feels she has no beauty. ठीक है, और जो उसने जो पहला नॉवल लिखा था when she was in her 30s, जो ब्लूएस्ट आई जो है पब्लिश हुआ 1970 में, वो अबाउट अ ब्लैक मैजिक गर्ल था जो कि who feels she has no beauty, जो कि ये फील करती है वो ब्लैक गर्ल कि उसके अंदर कोई ब्यूटी नहीं है. इफ ओनली हर आईज वर ब्लू एंड हर स्किन वाज वाइट देन शी कुड बी समवन हु कुड बी लव. तो वो उसको ये लगता है कि अगर वो खूबसूरत मतलब उस वक्त होगी जब उसकी आंखें नीली होंगी और जब उसकी स्किन जो है वो वाइट होगी. The book received respectable attention. The Bluest Eye became the first of many of Morrison's explorations into the identity, self-esteem, and impact of racial discrimination on what she believed to be the most vulnerable women and child. और यही ब्लियस्ट आई जो है वो फिर फर्स्ट ऑफ मैनी मॉरिसन एक्सप्लोरेशन इनटू आइडेंटिटी बन जाती है. मतलब ये जो उसने लिखी ब्लूएस्ट आई, तो ये अब जो है बहुत सी एक्सप्लोरेशन थी इनटू आइडेंटिटी और फिर सेल्फ एस्टीम की, और फिर एक इम्पैक्ट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, देखिए एक जब छोटे शहर का इंसान या गांव का इंसान जब शहर में जाता है तब भी ये डिस्क्रिमिनेशन होती है. ठीक है, और वो जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बड़े शहर के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो छोटे शहरों के स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ वहाँ पे भी जाके ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है. जब वो हॉस्टल में रह के छोटे शहरों के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो बड़े शहरों के स्टूडेंट समझते हैं कि शायद इनको कुछ आता नहीं है, ऑन व्हाट शी बिलीव टू बी मोस्ट वल्नरेबल. सेम इज़ द केस विद द जब दो कौमें एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक कौम जो होती है वो सुपीरियर होती है, दूसरी इन्फीरियर होती है. ठीक है, और फिर क्या होता है कि एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है किसके अंदर, वो कौम जो वहाँ पे आके रुकी हुई होती है, स्पेशली जो सेकंड नेशनैलिटी के साथ लोग माइग्रेट करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से गए हैं, वहाँ जाके एज अ सेकेंड नेशनैलिटी, आपको पता है वहाँ जाके पाकिस्तानी झाड़ू भी देने को तैयार हो जाते, पाकिस्तान में ये काम नहीं करेंगे. ठीक है, बिकॉज उनके अंदर अब वहाँ पे जाके ये उनके दिमाग में आ जाता है कि शायद हम गुलाम कौम है और हमें यही काम करना है. वहाँ पे वो एज अ सेलमैन खड़े हो जाएंगे या कुछ भी है. तो दीज आर द थिंग जो कि डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है कि भाई जब आप डिसलोकेट होते हैं तो किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं.
फिर वो कहते हैं एंड बिलीव्स टू बी द मोस्ट वल्नरेबल वीमेन एंड चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा उसने यहाँ पे क्या शो किया, वीमेन एंड चिल्ड्रन। और सूला पब्लिश्ड इन 1973 shows two friends, black and female, and how they fit and don't fit into their community. अब फिर एक और जो इसने किताब लिखी सूला, जो कि पब्लिश हुई 1973 में, वो शो करती है दो फ्रेंड्स को, एक ब्लैक है और एक फीमेल है, ठीक है। एंड हाउ दे फिट एंड डोंट फिट इनटू द, किस तरीके से वो फिट होते हैं या नहीं फिट होते अपनी कम्युनिटी। विद द रिपब्लिकेशन ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन इन 1977, इसने फिर सॉन्ग ऑफ सोलोमन लिखा 1977 में। मॉरिसन वॉन क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस एंड नेशनल बुक प्राइसेस सर्कल अवार्ड बाय द टाइम हर नेक्स्ट नॉवल टॉर बेबी was due to was due in the bookstores in 1981. She was featured on cover of Newsweek. Ever expand, ever expanding on the theme of telling stories untold, it is said her book Beloved was written in memory of the millions of lives lost during the slavery. फिर वो एक किताब लिखी उसने, बिलव्ड, ठीक है, जिसमें एवर एक्सपेंडिंग ऐसी कहानियां जो कि अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरीज वो लिखा करती थी। तो फिर उसने बिलव्ड लिखी, जिसके अंदर उसने दिखाया कि कितनी जो लाइव्स हैं वो लॉस्ट हो गई ड्यूरिंग स्लेवरी। द प्लॉट सेंटर्स अराउंड एन एक्स स्लेव सीथ who would rather kill her own children than risk that they be re-enslaved. और प्लॉट जो है वो सेंट्रल राउंड करता है, एक एक्स स्लेव होता है जिसका नाम सीड होता है, वो जो है किल कर देगा अपने ही चिल्ड्रन को, who would rather kill her own children than risk that they भी, कि भाई ये भी एनस्लेव हो, इससे पहले ही वो उसको किल कर देगा। द गोस्ट ऑफ सीड डेड चाइल्ड ट्राइज टू रिमेन क्लोज टू हर मदर। अब वो जो गोस्ट ऑफ सीड के डेड चाइल्ड होता है वो हमेशा उसकी माँ के करीब रहता है, एंड रीक्स हैवोक व्हेन शी कैन नॉट, और वो उसके दरमियान जो है कुछ हैवोक क्रिएट करता है व्हेन शी कैन नॉट। ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स इन बिलव्ड मॉरिसन पुलिट्जर प्राइज winning novel try to recover from the personal and collective indignities of slavery. और फिर जितने भी कैरेक्टर्स थे बिलव्ड के अंदर, मॉरिसन जो है उसको पुलिट्जर प्राइज वो विन करती है, जिसमें वो इस नॉवल के अंदर क्या है, ट्राई टू रिकवर फ्रॉम पर्सनल एंड कलेक्टिव इंडिग्निटीज ऑफ स्लेवरी, जिसमें वो रिकवर करती है फ्रॉम द पर्सनल, अपनी पर्सनल और कलेक्टिव इंडिग्निटीज ऑफ स्लेवरी, ठीक है। और जो उसकी कलेक्टिव इंडिग्निटीज थी स्लेवरी की, वो वहां से वो रिकवर करती है जब वो पुलिट्जर प्राइज विन करती है इस नॉवल की वजह से। I was trying to make it personal experience, says Morrison in a question and answer interview with Time magazine. The book was not about institution, ठीक है, slavery was a capital S, ठीक है। वो कहते हैं ये बुक कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं है, बल्कि स्लेवरी विद अ कैपिटल एस, ठीक है। वो उस बुक को क्या एक टाइटल देती है स्लेवरी का, जिसमें वो कैपिटल एस से स्लेवरी लिखती है। इट वॉज अबाउट दिस एनोनिमस पीपल कॉल्ड स्लेव्स, what they do to keep on, how they make a life, what they are willing to risk, however long it lasts, in order to relate to one another. That was incredible to me, she says. In 1992, Morrison published Playing in Dark, a collection other Harvard lectures. In this collection, she coins a new term, once again reinventing an already established concept. She teaches a humanities course that changes the term African American to American Africanism. फिर उसने क्या किया, उसने टीच किया ह्यूमैनिटीज कोर्स को, जिसने चेंज कर दिया किस टर्म को, अफ्रीकन अमेरिकन को अमेरिकन अफ्रीकनिज्म में, ठीक है। वो उसको क्या कहती थी, अमेरिकन अफ्रीकनिज्म। दिस सेम ईयर शी ऑल्सो पब्लिश्ड रेसिंग जस्टिस and gendering power, essays on controversy surrounding the Clarence Thomas Supreme Court confirmation hearings, ठीक है। अब उसने जो है उसी साल जो है पब्लिश किया था रेसिंग जस्टिस को और एंजेंडरिंग पावर, ये उसके एसेस थे ऑन कंट्रोवर्सी जो कि सराउंड करती है क्लेरेंस थॉमस सुप्रीम कोर्ट को, कंफर्मेशन हेयरिंग, उसकी कंफर्मेशन हेयरिंग्स पे।
अब वो क्या है कि ये उस कंट्रोवर्सी को जो है वो शो करती है जो कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हुआ करती थी. इन हर नॉवल जैज आल्सो पब्लिश्ड इन 1992, मॉरिसन कंटिन्यूज हर थीम ऑफ गिविंग अ वॉइस टू द वॉइसलेस. फिर उसने एक अनटोल्ड कहानी सुनाई. फिर उसने जो है एक वॉइस दी टू द वॉइसलेस. once again she does everything she can to stretch the imagination. अगेन उसने हर वो डज एवरीथिंग, हर वो काम किया जो कि वो स्ट्रेच कर सकती थी. जहां तक वो अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रेच कर सकती थी उसने उतना उसको स्ट्रेच किया था. नॉवल मेक्स बोथ रेशियल एंड हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स. और नॉवल ने दोनों रेशियल और हिस्टोरिकल स्टेटमेंट दोनों पे काम किया अबाउट द इनइक्वालिटीज ऑफ लाइफ फॉर अफ्रीकन अमेरिकन इन द पोस्ट स्लेवरी एरा. और किसमें उसने क्या किया, ना सिर्फ रेशियल और हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स अबाउट द इनइक्विटीज ऑफ लाइफ. ठीक है, इनइक्विटीज ऑफ लाइफ जो कि अफ्रीकन अमेरिकन की थी पोस्ट स्लेवरी एरिया में. स्लेवरी से पहले जो उनका हाल था यानी कि वो भी बहुत ही बुरा था. और उसके बाद फिर उनका स्लेवरी एरिया एरा जो है वो शुरू होता है. एरा है, सॉरी, एरिया बोल दिया. विद द राइटिंग ऑफ जैज मॉरिसन टेक्स ऑन न्यू टास्क एंड न्यू रिस्क. और राइटिंग ऑफ जैज के साथ मॉरिसन जो है वो न्यू टास्क और न्यू रिस्क लेती है. जैज फॉर एग्जाम्पल डज नॉट फिट द क्लासिक नॉवल फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और नरेशन. just like the music, this novel is named after the work is improvisational. और फिर जो है just like the music, ये novel भी जो है इसको नाम दिया गया the work is improvisational. ये जो है improvisational था work. In this work she is influenced not only by the jazz, blues, gospel music she was reared on, but also by the folklore, tall tales and ghost stories that her family told for entertainment. The result is writing style that has a unique mix of musical, the magical and historical. ठीक है, और रिजल्ट जो था क्या था, राइटिंग स्टाइल था जो कि एक यूनिक मिक्स था म्यूजिकल का, मैजिकल का और हिस्टोरिकल का. कल हम इंशाल्लाह करेंगे थीमेटिक एंड सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ जैज, जो कि दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह.